کے وی کے گاندربل کا اور اس ٹریننگ کا کوآرڈینیٹر بھی. اور یہ جو ٹریننگ پروگرام ہے جیسا کہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا پہلے کچھ لیکچرز میں کہ اس ٹریننگ پروگرام کا مقصد تھا کہ ہم اپنے یوتھ کو کیسے اسکل امپرومنٹ کریں اور ان کو کیسے بتائیں کہ نئی چیزیں کیا ہے جو آرگینک ایگریکلچر میں ہو رہی ہے اور آرگینک ایگریکلچر کی امپورٹنس کیا ہے. امپورٹنس کے ساتھ ساتھ what should be our strategies to make organic inputs available to our different stakeholders. نیشنل سینیریو کیا ہے آرگینک ایگریکلچر کا اور اسٹیٹ لیول پہ یا یو ٹی لیول پہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو یہ پروگرامز ہیں ایم ایس ایم ای کے جو ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا سے اسپانسر ہوتے ہیں اکراس کشمیر کا رول کیا ہے ایم ایس ایم ای پروگرامز میں اور کیسے ہم اسکلنگ کو امپروو کرتے ہیں. اور ہمارا مقصد ہے, ہمارا آبجیکٹو ہے کہ جو کیپیسٹی بلڈنگ ہمارے یوتھ کی ہے ان ڈائیورس جو ہے تھیمز وہ کیسے امپروو ہو اور ہم کیسے اپنے یوتھ کو سیلف سفیشینٹ بنائیں تاکہ وہ ایک نیا انٹرپرائز بنانے میں سکشم ہو اور نئی چیزیں کرنے کے لیے وہ تیار ہے. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے مجھے آپ بتاؤ کہ جو آج تک آپ نے پڑھا اس کا کریکس مجھے آپ بتاؤ کیا آپ نے پڑھا. ہاں مجھے ساتھ السلام علیکم. پہلے روز سے ہم نے پڑھا ہے کہ جو ایم ایس ایم ای کا پروگرام ہے اس میں مطلب جو ہمارے نئے فریشرز ہیں یا آلریڈی انٹرپرینر ہیں ان کو ایک ایسی پروگرس ہم بنائیں گے جس میں ہم نے مطلب مائکرو بایولوجیکل لیب کے بارے میں سوچا ہے یا فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کے بارے میں سوچا ہے ان میں پیسٹی سائڈ ریڈیو کیسے کم کریں گے ایسے ایسے. پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ جو پروگرام ہے ایم ایس ایم ای نے اسپانسر کیا ہے کہ اپنا جو یوتھ ہے وہ اپنا انٹرپرائز اسٹیبلش کر پائیں آرگینک ایگریکلچر کے لیے, چاہے مائکرو ہو, اسمال ہو, میڈیم انٹرپرائز ہو, شروع کرنا چاہیے. تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم اپنا یونٹ کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں, اس میں ڈائیورسفیکیشن اس میں کیا کر سکتے ہیں, چاہے وہ میں کمپوسٹ ہم کر سکتے ہیں یا آرگینک کلچر کے ریگارڈنگ کوئی بھی پروڈکشن کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنا آرگینک ایگریکلچر پروڈیوس کر پائیں اور پیسٹیسائڈ جو لوڈ ہے وہ کم ہو جائے ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں. تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ پیتھوجنز ہے, ہارمفل ہے اور یوزفل پیتھوجنز ہے, ان کا استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنا سسٹینیبل ایگریکلچر جو ہے وہ کر سکیں. ہاں جی آپ بتاؤ بیٹا. ہم نے ان دنوں میں یہی سیکھا کہ ہم آرگینک کیسے جائیں, یہ کیمیکل ہارمفل کیمیکلز جو ہیں ان سے ہم چھٹکارا کیسے پائیں. چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے. جی اچھا ہے, آپ کو لگتا ہے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے. اور کتنا اسکوپ ہے آرگینک انپوٹس کا, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھا ہے کہ آپ کے ہی بھائیوں نے بہت سارا کچھ اسٹیبلش کیا ہے اور کتنا کرنے کی ضرورت ہے. بہت کرنے کی ضرورت ہے. ہاں بیٹا پاسیدہ. پہلے ہمیں یہی پتہ چلا کہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم بایو کنٹرول ایجنٹس کا استعمال کریں فارمرس کو بھی, اور پھر یہ پتہ چلا کہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے یہاں پہ لیکن سپلائی بہت کم ہے. تو بہت اسکوپ ہے اس سیکٹر میں کہ ہم اس پہ انویسٹ کریں آگے. ٹھیک. ہاں بیٹا بتاؤ آپ نے کیا سیکھا, کچھ سیکھا آپ نے؟ ایک دن آپ آئی ہیں ایکسپوجر وزٹ میں کہیں نہیں آپ گئی؟ نہیں, وہاں 2 جگہ پہ میں نہیں گئی تھی. شالیمار گئی تھی وہاں سے آپ کو؟ جی سر. اچھا, کیا سیکھا آپ نے؟ سر یہی کہ ہم آرگینک کیسے جائیں, ہم لوگ مطلب جو ہم پیسٹیسائڈس وغیرہ یوز کرتے تھے وہ کیسے ہارمفل ہے ہماری ہیلتھ کے لیے, ہم ان کا ریزیڈیو کیسے کم کریں گے, ان کا وہ ٹیسٹنگ وغیرہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کیسے دیکھیں گے اور ہم کیسے اپنے یونٹس اسٹیبلش کر سکتے ہیں, جیسے جو بھی کمپوسٹنگ یونٹ پہ گئے تھے یا مشروم کلچر وغیرہ پہ گئے تھے, تو وہ چیز. اچھا آپ مجھے ایک چیز بیٹھو, آپ مجھے ایک چیز بتاؤ, کوئی بتا سکتا ہے واٹ از ڈفرنس بٹوین اے بزنس مین اینڈ این انٹرپرینور؟
difference between And a entrepreneur businessman is a and person who एक makes आराम से, एक Entrepreneur is a small businessman, and businessmen are the high quality businessmen like in crores, millions, other. Entrepreneur is a small businessman. entrepreneur small. अच्छा आप बताओ. Starting. an entrepreneur is we can say he is a businessman, हाँ. but he takes his business in an innovative way, in a new manner. He Initial tries stage. to take new ideas in his business to flourish his business, and more in advance he thinks of the life culture or we can say the societal role in his business. But in a businessman only thinks for his profit only. That is the difference between the entrepreneur and Entrepreneur क्या देखता है? Entrepreneur profit नहीं देखता. हाँ वो भी पहले मैं वही वो तो पहले ही बिजनेसमैन होता ही है, शुरू तो बिजनेसमैन ही होता है पर्सन. मैंने कहा पहले ही कि वो बिजनेसमैन होता है, लेकिन वो इस चीज़ को साथ लेके चलता है कि सोसाइटी में उसका कैसा रोल रहेगा या उसकी जो एंटरप्राइज है उससे किस तरह से लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और उसके लिए वो इनोवेटिव टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं. यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो इस ट्रेनिंग में आपको जो आप सीख सकते हो, जो आप घर ले सकते हो. मैंने सबसे पहले आपको बताया कि अगर हमें कुछ भी करना है, वट एवर वी हैव टू स्टार्ट, खासकर हम ट्रेनिंग की बात करें कि जब हम स्किल की बात करते हैं, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में या आप एज ए ट्रेनी या हम एज ए रिसोर्स पर्सन या साइंटिस्ट, हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, वो है आइडिया. ठीक है. सबसे पहले जो है एक आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए. जब आपके माइंड में कोई आइडिया होगा, देन यू स्टार्ट टू वर्क ऑन दैट आइडिया. आप उस आइडिया के लिए काम करते हैं. उस आइडिया को हासिल करने के लिए यू सर्च फॉर वेज एंड मीन्स. ठीक है. अब उसके लिए क्या, जैसे आपके पास कोई आइडिया है दैट यू वांट टू डेवलप ए बायो कंट्रोल यूनिट, ट्राइकोडर्मा का आप बायो कंट्रोल यूनिट बनाना चाहते हैं लॉर स्केल. दिस इज वन ऑफ द आइडियाज. से फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? व्हाई दिस आइडिया? पहले सबसे पहले आपको पता है होना चाहिए कि क्यों मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मैं ये क्यों करूँगा, यू विल नॉट बी एबल टू मूव ऑन. जिस इंसान को पता ही नहीं होगा कि मैं इस ट्रेनिंग के लिए क्यों रजिस्टर कर रहा हूँ, ही विल बी अ फेलियर. ये उसका टाइम, उसकी एनर्जी, हमारी भी एनर्जी उसके लिए फेलियर. हाँ, फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट और फॉर द सेक ऑफ फिलिंग दैट गैप वो करेगा, लेकिन वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसके माइंड में ही हैज ए कंफ्यूजन. ही और शी हैज ए कंफ्यूजन. कोई भी हो, कोई भी इंसान हो जिसके माइंड में कंफ्यूजन होगा, जिसके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी, वो कभी कामयाब नहीं होगा. तो इस ट्रेनिंग की बात जब हम करें, जब आपने रजिस्टर इस ट्रेनिंग के लिए किया, मुनीर साहब है, आप है, या जो भी इसके साथ वाबस्ता ऑलरेडी है या नए लोग जो है, दे शुड हैव क्लैरिटी. अगर मैं ये 6 दिन दे रहा हूँ, 7 दिन दे रहा हूँ, these 7 days should be the turning point of my career. इस जज्बे के साथ उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यूथ में बहुत बातें करते हैं, बट दिस फैक्टर इज लैकिंग. जब हम बाहर जाते हैं, कश्मीर से ही बाहर जम्मू जाते हैं, वहाँ के यूथ में आसमान ज़मीन का फर्क. अदरवाइज हमारे यूथ में टैलेंट बहुत है, एनर्जी बहुत है, मतलब वी हैव लॉट ऑफ कैपेसिटी. लेकिन यही चीज़ है, हम 4 कश्तियों पे अपनी टांगे डालते हैं. हम पढ़ाई भी करना चाहते हैं, ट्रेनिंग भी करना चाहते हैं, स्कूल में प्राइवेट काम भी करना चाहते हैं, बाकी चीज़ें भी करना चाहते हैं, इससे हम कुछ नहीं कर पाते. मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि स्किल किसको बोलते हैं. स्किल उस चीज़ को बोलते हैं जब आपके पास एक आइडिया हो, देन यू हैव टू परस्यू अ स्किल. अब इस आइडिया के लिए मुझे क्या है, टेक्निकली मुझे पहले साउंड होना चाहिए. आई शुड नो ऑल द निटी-ग्रिटीज ऑफ दिस बायो कंट्रोल एजेंट. एक ही बायो कंट्रोल एजेंट की बात, ट्राइकोडर्मा हो या कोई और ट्राइकोगामा हो, कोई भी बायो कंट्रोल एजेंट हो जो इस टाइम आर ऑलरेडी अवेलेबल है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. तो जब आपके पास ये हो कि मुझे अब ट्राइकोडर्मा को एक लार्ज स्केल पे बनाना है, तो यू शुड नो ऑल अबाउट ट्राइकोडर्मा, कि उसका बिहेवियर, उसकी बायोलॉजी, कैसे उसको कल्चर करते हैं, कैसे उसको पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे फिर उसको कल्चर करते हैं, मास कल्चरिंग क्या है,
मास कल्चरिंग के बाद फिर प्रोडक्शन लाइन कैसे बनती है, उस प्रोडक्शन लाइन में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मीडिया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जो है मशीनरी वी हैव टू यूटिलाइज, वो मशीनरी कहाँ से मिलेगी, क्यों करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी मार्केट में इतने ब्रांड्स है ट्राइकोडर्मा के, तो मेरा ब्रांड उनसे कैसे अलग होगा, तो मैं कैसे कम्पीट करूंगा मार्केट में जो है। तो इन सब चीज़ों का आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपने सोचा फलानी ने किया मैं भी करूंगा, फिस्तानी ने किया मैं भी करूंगा, तब आप कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक आपके स्किल्स इम्प्रूव नहीं होंगे, जब तक आपके पास कुछ हट कर नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको कि आज से 30 साल पहले सब लोग जब हेयर कटिंग करने जाते थे तो नाई के दुकान पे जाते थे, तो नाई 10 रुपये लेता था, 5 रुपये लेता था, 2 रुपये लेता था। जहाँ जहाँ टाउन में एक रेट थी, सिटी में एक रेट थी, मेट्रो में एक रेट थी, तो जाते थे। लेकिन इन 30 सालों में हेयर कटिंग का सिनेरियो जो है वो ऑल टुगेदर चेंज हो गया। आप आज से 10-15 मिनट, आज से आप 20 साल पहले अगर कोई बोलता कि हेयर कटिंग जो है, क्या एक हेयर कट 5,000 रुपये मुझे देगी, कोई यकीन करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास वो था ही नहीं, उसके पास वो चीजें थी ही नहीं, उसके पास सोचने की वो सलाहियत थी ही नहीं। लेकिन आज के ज़माने में एक हेयर कट 5,000 से 10,000 रुपये एक इंसान को कमा के देती है। उसके पास भी वही कैंची है, उसके पास भी वही कुछ, यहाँ कुछ चीज़ें हैं एड ऑन हो गई हैं विद टाइम, लेकिन कैंची वही है, कंगा वही है, काम वही है, लेकिन किस चीज़ में फ़र्क है? स्किल में और सोच में। उसने अपने सोच से, उसने अपने माइंडसेट से एक ब्रांड बना दिया। जैसे जावेद हबीब की कैंची ने एक ब्रांड बना दिया, उसके कट ने एक ब्रांड बना दिया। वरना वही कैंची सब लोगों के पास थी, वही मेरा बार्बर जो 2 रुपये भी नहीं कमाता था एक महीने के लिए, वो एक कट का 10,000 रुपये कमा लेता। तो ये इनोवेशन है। दिस इज वेयर एंटरप्रेन्योर हैज टू लर्न। दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन को सिर्फ नफा और नुकसान का फायदा करना होता है, उसका माइंड बस उतना ही होता है, मैंने 10 रुपये का चीज लाया, ये मैं 11 रुपये 12 रुपये में कैसे बेचूं। दिस इज अ बिजनेसमैन, उसको बाकी चीजें है ही नहीं, बस यही है कि ये जो प्रॉफिट मार्जिन है, ट्रेडिंग है, मुझे ट्रेडिंग करनी है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है, उसके पास जो प्रोडक्ट होता है, जैसे मेरे पास हनी है, आई एम एन एंटरप्रेन्योर ऑफ हनी, तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेडर क्या करेगा, ट्रेडर हनी बोतल है वो 200 रुपये में बेचेगा, उसमें उसका 20 रुपये का मुनाफा होगा। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होगा वो पहले क्या करेगा, पहले इस हनी का, अगर उसके पास 1 kg हनी है, वो पहले देखेगा ये किस चीज का हनी है, ठीक है ना। अगर ये इस चीज का हनी है, इसकी जो है क्वालिटीज क्या है, ठीक है, इसकी खुसूसियत क्या है, ये किस चीज के लिए, जैसे मान लो हमारे पास है सैफरान हनी, तो ट्रेडर सैफरान हनी को उसी हिसाब से भेजेगा, नफा नुकसान के हिसाब से। जो एंटरप्रेन्योर है वो उसको पहले कैटेगराइज करेगा, दिस इज सैफरान हनी, दिस इज एप्पल हनी, दिस इज रोज हनी, दिस इज सीडर हनी, कैटेगराइज हनीज को करेगा। उसके बाद हर एक हनी का एक क्वालिटी पैरामीटर देखेगा कि उसमें स्पेसिफिकली क्या है। ये हनी जो है, दिस इज अकेशिया हनी, इट हैज higher calcium content, it has higher potassium content, it is used for pulmonary diseases, it is used for children having chest congestion, it is used for जो है females having asthma, मतलब these are some of the qualities है। for example, इसी तरह रोज हनी है, रोज हनी जो है it is good for lactation, it is good for pregnant women, it is good for is a good immuno booster, these are some of the qualities। तो बेस्ड ऑन दोज क्वालिटीज, एक तो वो उनको अलग अलग कैटेगरीज में ये करेगा, यानी ये कैटेगराइज करेगा। उसके बाद उनकी क्वालिटीज को देखेगा, उन क्वालिटीज को भी कैटेगराइज करेगा। उसके बाद सबसे पहला काम होगा कि मैं इस हनी को कैसे बोटलिंग करूँ, मैं इस हनी को किस टाइप की बोटलिंग और ब्रांडिंग करूँ, मैं इस हनी को कौन सा नाम दे दूँ,
मैं इस हनी को ऐसी अट्रैक्टिव बोटलिंग करूं कि लोग ऑटोमेटिकली उसको लेने के लिए आ जाए। देखिए क्योंकि मुझे मेरा प्लेस शॉपकीपर नहीं है, मेरा जो प्रोडक्ट है इट शुड गो इन मॉल्स, इट शुड गो इन बिग प्लेसेस, इट शुड गो इन जो हाईली लुक्रेटिव जो मार्केट प्लेसेस है वहाँ पे जाना चाहे, तो वो उसी हिसाब से सोचेगा। उसकी लेबल भी डिफरेंट होगी, उसकी बोतल भी डिफरेंट होगी, उसका जो है लेबल पे जो लिखा हुआ जो कंटेंट है वो भी डिफरेंट होगा, और वो इतना अट्रैक्टिव होगा कि लोग उसी हनी को जो ये ट्रेडर 200 रुपये में बेचता है 2000 रुपये में बेचेगा। इसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। यानी कि उसने इस आइडिया को अपने इनोवेटिव तरीके से कीपिंग इन व्यू द डिमांड ऑफ द मार्केट, नई चीज अट्रैक्टिव बनाया, इनोवेटिव अप्रोच यूज किया, हर एक चीज नया किया, तो उसी चीज को उसने 1800 रुपये का प्रॉफिट उसी चीज का, वरना चीज वही है, चीज वही। तो वही चीज आप लोगों को क्या है, पहले अपना प्रोडक्ट देखना है क्या है, फिर उसमें कि आप उस प्रोडक्ट को एंटरप्रेन्योर लेवल पे, स्टार्टअप लेवल पे कैसे ले जाए। दिस इज व्हाट इज गोइंग, व्हाट यू शुड लर्न इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो यही चीज आपको सीखनी है, यही चीज जो जावेद हबीब की जो इनोवेशन या किसी भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी स्टार्टअप की दुनिया में, किसी भी प्रोडक्ट लाइन में, उसने यही किया है कि नहीं, उसने यही किया और उसने अपना नाम बनाया, लोग ऑटोमेटिकली जुड़ते हैं। क्योंकि आजकल हर एक जो है वो ब्रांड के पीछे पड़ा है। आजकल धोखे का जमाना नहीं है, एक चीज याद रखिएगा, क्लियरिटी रखिएगा कि आजकल इतनी इंफॉर्मेशन फ्लो है कि धोखा आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वंस यू स्टार्ट चीटिंग पीपल, वंस यू स्टार्ट चीटिंग समवन, यू आर चीटिंग योरसेल्फ। हाँ, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपको थोड़ा सा लगेगा मुनाफा है, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म यू विल बी पेरिश, क्योंकि कोई और आएगा और आपको रोक के चला जाएगा। चीटिंग का जमाना ही नहीं, जो भी आपके पास है उसको आपको खाली क्या करना है, यू हैव टू, आपका प्रोडक्ट है, आपको पहले प्रोडक्ट बनाना है, आइडेंटिफाई करना है, अपना एंटरप्राइज आइडेंटिफाई करना है। उस एंटरप्राइज को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको देखना है कि हाउ आई विल बी एबल टू पर्कुलेट इन द मार्केट, और मार्केट में ऑलरेडी जो 10 प्लेयर्स हैं उनको उनके आगे में कैसे, दैट मीन्स यू हैव टू स्टडी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपकी डिमांड है वो कैसे बनेगी, क्यों आपका वर्मी कंपोस्ट सब देंगे, क्यों आपका बायो कंट्रोल एजेंट सब देंगे, क्यों आपकी चीजें सब देंगे, क्या है आपकी चीजें, वही आपको देखनी है, आइडेंटिफाई करने, इनकलकेट करने उसमें, यानी बायो फोर्टिफाइड वर्मी कंपोस्ट, उसमें वो चीज है जो किसी और वर्मी कंपोस्ट में नहीं है। It is fortified with potassium, say for example, it is fortified with some biocontrol agent इस लेवल पे कि उसमें आप ऑटोमेटिकली करेंगे कि 3 महीने के बाद ही ये आपको रिजल्ट दे देगा अपने क्रॉप में। That means it is tested, already tested and proved in different laboratories. तो वो आपको एक क्या देगा, that will give you boost and flame. तो ये चीज आपको करना है। This is where entrepreneur and startups have to move. This is where your mindset has to change. This is where you have to move forward. अपने mindset को आगे निकालो, मत उसी मोनोटोनस लाइफ में रहो, मत रहो कि मुझे क्या करना है, ऐसे बनो कि आप 50 लोगों के 2,000 लोगों को रोजगार दे, ऐसे बनो, आप सब में वो कैपेसिटी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वही आज कश्मीरी जो है वो फीमेल्स हो या मेल्स हो, या हमारे बॉयज हो या गर्ल्स हो, वी हैव द बेस्ट टैलेंट। ऐसा है ही नहीं जो किसी के पास है। जब हम अपने कश्मीर से बाहर निकलते हैं, मेरा डॉक्टर, मेरा इंजीनियर, मेरा कोई भी शॉल वाले से लेके दुकानदार से लेके, जब भी वो कश्मीर से बाहर निकलता है ना, ही प्रूव्स हिमसेल्फ द बेस्ट। उसका क्या रीजन है, यहाँ क्यों नहीं वो करता है? क्योंकि हम घर में आलसी बन जाते हैं, हम घर में पता नहीं क्या क्या खराफात में लगे रहते हैं, हम पॉजिटिव माइंडसेट के थ्रू आगे बढ़ते ही नहीं है, ठीक है ना। हम बस एक ने कुछ किया, बस उसी के पीछे लगे। जब आज आप देखेंगे वो कोई दुनिया का हॉस्पिटल नहीं है जहाँ कश्मीरी डॉक्टर, मुस्लिम कश्मीरी डॉक्टर, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, पंडित हो या मुस्लिम कश्मीरी डॉक्टर हो या पंडित कश्मीरी डॉक्टर हो, या कोई भी जो कश्मीर J&K से वाबस्ता है, द पीपल इन J&K हैव लॉट ऑफ टैलेंट। ऐसे गॉड गिफ्टेड है हम कि हमारे पास वी आर वेरी वाइज पीपल, वी आर वेरी अकोमोडेट। हम में ये है कि हम में कैपेसिटी हम
सब कुछ करें, वी हैव अडेप्टेबिलिटी, जो बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम रेसेस में होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज आवर रिजर्व। मेरा शान वाला जब वो कलकत्ता जाता है, दिल्ली जाता है, बॉम्बे जाता है, सुबह से शाम तक वो मेहनत करता है, 1000 रुपये कमाता है, लेकिन घर में बैठ के वो 100 रुपये भी नहीं कमाता है। मेरा डॉक्टर एम्स में आज है, दुनिया के ग्लोबल हॉस्पिटल में आज है, वहाँ टॉप रेटेड डॉक्टर्स देखिए, दे आर ऑल कश्मीर। टॉप रेटेड इंजीनियर गल्फ में हो, यूरोप में हो, दे आर ऑल कश्मीर। तो वो कैसे है? क्योंकि वहाँ पे उनको एनवायरनमेंट मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें अपना एनवायरनमेंट खुद बनाना है। We have to, जैसे आप लोग हैं, you have to create competition within yourself। जब आप competition करेंगे ना, तब आपको पॉजिटिव competition, ये नहीं कि उसको हराना है, आपको कहना है कि मैं इससे बेहतर कैसे बनूं, वो भी रहे, क्योंकि जब मार्केट तब बनता है। ये हमारा मिसकंसेप्ट, एक और मिसकंसेप्ट मैं बताऊं क्या है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप का है, कि हमें लगता है कि किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, किसी ने कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया। जब आप कहाँ पे सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हैं, किस प्लेस पे करते हैं? से फॉर एग्जांपल आपको फ्रूट लाना है, आप फ्रूट कहाँ पे लाएंगे? जहाँ पे 10 रेडे वाले हो या 10 फ्रूट सेलर्स हो, कि जहाँ पे एक फ्रूट सेलर हो, है ना? ये नेचुरल टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी। क्यों? क्योंकि आप उस मार्केट प्लेस पे जाते हैं जहाँ आपको डाइवर्सिटी मिले, मार्केट रेंज मिले, प्राइस रेंज मिले। केले आपको लाने हैं जब आपके 10 फ्रूट सेलर्स हो, जिनके पास डिफरेंट टाइप के केले, 100 रुपए का भी हो, 110 का भी हो, 120 का भी हो, 40 का भी हो, 80 रुपए का भी हो। दैट मीन्स कि जब हम 10 एंटरप्रेन्योर्स को एक एंटरप्राइज में खड़ा करेंगे, दे हैव इनबिल्ट कंपटीशन। लेकिन उस इनबिल्ट कंपटीशन से क्या होगा? पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए, कि हर एक को एक मार्केट मिलेगा, दे विल क्रिएट अ मार्केट। उस मार्केट से लोग आएंगे, जुड़ेंगे। हाँ, ये हब है, ये पुलवामा है, दिस इज अ हब ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स, हब ऑफ से फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह अभी हम साउथ कश्मीर की बात करते हैं, जब हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग मटेरियल की बात करते हैं, साउथ कश्मीर, पुलवामा, शोपियान, अनंतनाग आ जाता है ना? इसी तरह किसी भी चीज की अगर हम बात करें, तब मार्केट बनता है जब आप कंसंट्रेट हो जाए किसी प्लेस पे और कुछ पर्टिकुलर एंटरप्राइज को वहां पे डेवलप करें, तो वो पर्टिकुलर एरिया उस हिसाब से। ये मिसकंसेप्शन आप किसी और ने बनाया तो उससे मेरा ये हो जाएगा, उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा घटेगा नहीं, ये याद रखिएगा। ये यहीं पे मिसकंसेप्शन है किसी और ने, लेकिन आपको पॉजिटिव लेवल से देखना है, ठीक है ना? आपके ऑर्डर्स कल को आ जाएंगे तो आप उस हिसाब से वो स्पेसिफिक कीजिए, ये नहीं उसने जो किया उससे हट के कीजिए ना। आप बायो कंट्रोल एजेंट बनाए, इसने बनाया जिसमें ट्राइकोडर्मा एड ऑन है, आप कुछ और एड ऑन कीजिए। आपके पास भी वर्मी कंपोस्ट, आपके पास भी कोई बायो कंट्रोल एजेंट है जो डाइवर्स क्रॉप पे एक्ट करेगा, जिसमें 3-4 बायो कंट्रोल एजेंट्स होंगे, वैसा बनाए। इसके पास 2 ही, आपके पास 4 है, लेकिन है प्रोडक्ट इज अवेलेबल। एक की चॉइस, एक जो बायर होगा, मेरी चॉइस 2 ही प्रोडक्ट को लेने की है, ये मुझे 100 रुपये मिलता है, आपका 120 रुपये में मिलता है, मेरी वो कैपेसिटी नहीं है, मैं 10 टन का ऑर्डर दूंगा, आपको 85 टन का ऑर्डर कोई और देगा, लेकिन देगा। तो ये सब चीजें हैं जो स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन चीजों को सीखने की जरूरत है। मेरे अभी बाहर से जो एक्सपर्ट आए हैं, मैं उनको मौका दूंगा, मैं बाद में फिर कर दूंगा, ठीक है।